guys, welcome back to another episode of Location Nexus, where we pick a location and we discuss the good, the bad, the ugly, but everything data के साथ. Navi Mumbai in one word. Growth. Are decisions of home buyers faster or slower today compared to 2021? They're very deliberate now. भावेश भाई आपसे शुरू करते हैं. The promoter, the face, and to his immediate left, Sir Kirti Prakash. I know him for many years. क्या 1 bedroom बिकना बंद हो गए हैं क्योंकि आपने बनाना बंद कर दिया कि वाकई में डिमांड नहीं है? So जो 1 BHK का वहाँ पे premiumization has taken its roots and the market is moving up. Buyer बहुत aspirational है क्योंकि growth opportunities इतनी बन गई हैं, jobs इतने आ गए हैं and connectivity की जो बात करते हैं. आप खाना से लेके पनवेल तक हो, इंडिपेंडेंट घर भी बनाते हो, मतलब बिल्डिंग टाउनशिप भी बनाते हो, फ्रॉम अ 5 acre to a 50 acre. शायद अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बात करूं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर नवी मुंबई में कोई घर बिकते हैं तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट. 5-year outlook, acceleration or stabilization for Navi Mumbai. 20-year acceleration. One buyer expectation that you think never existed 5 years back. Community development. Biggest risk developers underestimate. I think cash flow management. A lot of people don't give a lot of emphasis. 1 bedroom बनाते हो, 2 भी बनाते हो, 3 भी बनाते हो. मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि आप कोई डुप्लेक्स घर भी बना रहे हो. Are you the only one doing this? Are you an alien developer in Navi Mumbai और सभी ये कर रहे हैं? So guys, welcome back to another episode of Location Nexus, where we pick a location and we discuss the good, the bad, the ugly, but everything data के साथ, because when you're with AKG, data तो बनता है. So before I introduce my guests to you guys, and I'm super excited to meet them, I'm going to introduce a location to you. And उसपे मुझे एक कहानी याद आ रही है. तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूपी का स्टेट विल बिकम अ $1 trillion इकोनॉमी बाय 2030. डोंट फॉरगेट, हिंदुस्तान की टोटल इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है आज. देन मैं बहुत डेटा देखता हूँ, मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है, तो वी देन रियलाइज्ड कि जो मुंबई 3.0 है, विच इज नवी मुंबई इनटू रायगढ़, that has the potential to become a $1 trillion economy by 2040, 47, जहाँ मोदी जी बोलते हैं ना विकसित भारत. Can you imagine? This region that we're going to discuss today, which is Navi Mumbai and Mumbai 3.0, can akela become a $1 trillion economy, which is bigger. So that's the location we're going to talk about. And now it's time to introduce my wonderful guests. भावेश भाई आपसे शुरू करते हैं. The promoter, the face, the karta dharta of today's group. You've been in Navi Mumbai for a while, and अब मुझे लगता है आपका एकदम सही में, जैसे बोलते हैं ना, मेरा टाइम आ गया, जैसे नवी मुंबई का टाइम आ गया. And to his immediate left is, can I call you KP? Between friends, but that's Kirti Prakash. I know him for many years, and he is the chief business officer for this brand. जिसमें आई थिंक बहुत कुछ इंक्लूड आता है. सेल्स भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, ब्रांडिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया. So it's going to be a lot of fun. We're going to discuss about Navi Mumbai. We're going to discuss about the brand. We're going to discuss what this gentleman has been doing for the last 20 years and what he's going to do for the next 20 years, if not more. So guys, brace up. Let's discuss Navi Mumbai and brand today's global. Just a small correction there. I think you just said today global group. So I just want to tell you and all the viewers, अभी हम लोगों ने रिसेंटली 1 साल पहले एक बहुत बड़ा रीब्रांडिंग एक्सरसाइज किया, जिसमें कंपनी को हमने रीनेम करके टुडे ग्लोबल की बजाय टुडे ग्रुप का नाम दिया, भद्रेश एंड भावेश ग्रुप. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाई दिस चेंज नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड. तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर ही है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर हमें टुडे ग्रुप के नाम से जानते हैं. तो व्हेन वी वर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग वन डे, कीर्ति एंड आई डिस्कस कि कंपनी को वही नाम से जाना जाना चाहिए जिस नाम से आम आदमी उसे जानता है. तो हमने काफ़ी सोचने के बाद टुडे ग्लोबल में ग्लोबल को ड्रॉप किया. नाउ इट्स ओनली टुडे ग्रुप, भद्रेश एंड भावेश एंटरप्राइजेस. हमारा लोगो भी नया है और उसके हिसाब से हम आज जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं वो टुडे ग्रुप के नाम से करते हैं. और भावेश भाई, आई लाइक दैट नेम टुडे, बट आई डेफिनेटली वांट टू से कि टुडे इज जैसे आज, टुडे. यस. But you're doing wonders and building projects for tomorrow. So I'd be very happy to say that, you know, कि Baba एक today and tomorrow. So it's not only today, but it's tomorrow as well. But
Congratulations to you. जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, हमारा पुराना पंच लाइन कुछ ऐसा ही था, टुडेज प्रॉमिस टुमारोज रियलिटी। बट इस ग्रुप का नाम टुडे होने का बहुत बड़ा कारण है, ये ग्रुप का नाम टुडे आज से 20 साल पहले मेरे बड़े भाई भद्रेश शाह ने रखा था। उसका एक सिंपल सा कारण था, हम एक छोटा सा नाम चाहते थे जिसमें बहुत बड़ी ताकत हो। बहुत सोचने के बाद ऐसा लगा आज की ताकत से बड़ी ताकत तो किसी में है ही नहीं। जो काम आप आज कर सकते हो न कल यस्टरडे को कर सकते थे और न कल कर पाओगे। तो क्यों ना इस ग्रुप को टुडे का नाम दे ताकि हर आदमी को पता लगे आज की ताकत क्या है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टुडे ग्रुप। So Bhavesh, we will begin with you. We promised everybody कि हम बातें करेंगे नवी मुंबई की, हम बातें करेंगे आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। But let's begin with नवी मुंबई first. तो ये तो हमें सबको पता है कि बहुत इंफ्रा बन रहा है। But I want to ask you कि ऐसी एक ही चीज़, या चलो अगर आपको मन हुआ तो दो, उसके आगे नहीं बोल सकते। ऐसी क्या चीज़ है which has really changed in the last 5 years? Is it the airport? Is it the Atal Setu? Is it the Palm Beach जो तो हमेशा से था? Is it affordability? Is it data centers? ऐसी क्या चीज़ है जो नवी मुंबई को आज इस मुकाम पे ले आई है, जो सभी उसके बारे में बात करना चाहते हैं? अभिषेक, एक रीसेंट थियरी है। आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पीकर इन बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई, एंड दे आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि आप नवी मुंबई के बारे में कुछ बताइए। तो आई कॉइन्ड अ न्यू टर्म कॉल्ड स्पेस थियरी, और वो थियरी है जो नवी मुंबई की ग्रोथ के बारे में बताती है। जब मैं स्पेस की बात करूँ तो एस स्टैंड्स फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए इज अफोर्डेबिलिटी, पी इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी इज कनेक्टिविटी एंड ई इज एनवायरमेंट। तो ये 5 चीजें हैं जो बताती है कि क्यों नवी मुंबई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आगे बढ़ा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, बेस्ट ऑफ द स्कूल, बेस्ट ऑफ द मॉल, गोल्फ कोर्स, रिलीजियस प्लेसेस, यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर इन नवी मुंबई। ए इज अफोर्डेबिलिटी। आज हम देखते हैं कि नवी मुंबई इज ओनली प्लेस जहां पर 8,000 रुपया कारपेट से चीजें चालू होती है और 1 लाख रुपया कारपेट पे भी चीजें अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान जो अपना लाइफ की नई शुरुआत कर रहा है, नया नया जॉब ज्वाइन कर रहा है, हर आदमी आज 1-1.25 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू मेक अ डिसेंट स्टार्ट, अगर आपको 40-50 लाख का घर खरीदना है, नवी मुंबई कैन प्रोवाइड यू दैट होम विद अ लॉट ऑफ एफिनिटी। तो वो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर है। देन वी टॉक अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 बिग थिंग, अटल सेतु, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिज इन इंडिया, एंड देन ऑफ कोर्स द न्यू एयरपोर्ट जो अब ड्रीम नहीं रहा, रियलिटी हो गई है। जस्ट टू लेट यू नो, आज मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ, वही एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अहमदाबाद से एक सुबह फ्लाइट चलती है 11 बजे, जो 12 बजे आपको लेके आती है, 12:15 मेरे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो 15 मिनट का टाइम है जो मुझे 1.5 घंटा लगता था आने में। तो दैट कनेक्टिविटी इज देयर, एंड डेफिनेटली एनवायरमेंट वी ऑलवेज सी। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि पिछले 15 साल में मैंने नवी मुंबई में कभी फ्लड आते नहीं देखा। कितनी भी बारिश होने दो, नवी मुंबई में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें घर पहुंचने में दिक्कत हुई हो या पार्किंग लॉट में पानी भरा हो। तो आज हर आम आदमी को यही चाहिए। हम आदमी चाहता है कि वो जहाँ रहता हो पास में स्कूल्स हो, पास में मॉल्स हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हो, 45 to 50 मिनट में बॉम्बे पहुंच जाए, उसके बच्चों के खेलने के लिए गार्डन हो, अच्छा नेचर के करीब हो। मेरे ख्याल से, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी नो कि नवी मुंबई पिछले काफ़ी सालों से टॉप 3 में क्लीनेस्ट सिटी में रहा है। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम जो चाहते हैं नवी मुंबई में नहीं है। तो आई एम श्योर, बट मुझे आज भी लगता है कि नवी मुंबई का पूरा पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ है। द रीज़न इज़ आज भी बहुत सारे लोग नवी मुंबई के फ्यूचर को नहीं जानते हैं। जब लोग कहते हैं कि नवी मुंबई पीक पे पहुंच गया, तो मैं कहता हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली डिसअग्री विद दैट। जैसा कि बोलते हैं अपना टाइम आएगा, नवी मुंबई का टाइम अभी आया है। आने वाले 2 डेकेड तक, यानी आप मान के चलिए जब तक हमारा रिटायरमेंट आएगा और हमारे बच्चे बिजनेस ज्वाइन करें, तब तक नवी मुंबई का टाइम चलता रहे। एक सेकंड, आई हैव टू स्टॉप यू फॉर अ सेकंड। ये मोदी जी ये सब निकाल के लेके आते हैं नए नए वर्ड, एक भारत एक, आपका भी कोई थिंक टैंक है क्या? ये स्पेस आया कहाँ से? ये स्पेस की थियरी हमने ही बनाई है, क्योंकि देखो हम अल्टीमेटली मेरी कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग और फाइनेंस देखता हूँ। तो जब ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो हमको कस्टमर्स को ऐसे रीजन देने पड़ते हैं, वाई नवी मुंबई।
तो हम कहते हैं व्हाई नॉट नवी मुंबई, और कस्टमर उसका जवाब नहीं दे पा रहा जब उसको बोलते हैं व्हाई नॉट नवी मुंबई, क्योंकि उसके हर सवाल का जवाब हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर और उनकी टीम के पास होता है. So chalo, now he's put you in a fix. Now I have no option then to direct my next question to you. Sriram boost to that. So he spoke about affordability and I asked my team to pull out some numbers. So 2021 May, there were about 8,000 apartments sold. And 25 May, there were around 16,000 apartments sold. ये तो बहुत अच्छी बात है. It's fantastic. But then at the same time, the price has also increased by 80%. There is a phenomenal growth. Right? We was talking about it, ki the upper Kharghar was probably price X, and I want you to speak about it, and it has become price Y. So then, is it still affordable? And now you can't compare to Bombay, because we know Bombay is unaffordable. But tell me a little bit more about the growth in pricing, which is good for wealth creation, but then at some point it becomes a little unaffordable as well. So tell me a little more about that. And why did this gentleman over here, right in the middle of his space, was affordability then? So it is a proxy play on affordability now, Abhishek, versus where we were in 2021. That time it was a pure affordability play. It was an alternate to more expensive locations. Now it's a value-driven location that is now being absorbed by pretty much everyone across various stratas. So you have premium segment, you have products which are priced at 30,000, 40,000 carpet as well. You've got, as Bhavesh Bhai mentioned, you've got the range starting from 6,000 on carpet as well, 8,000 on carpet as well. So the entire spectrum of products are now covered. Plus the growth story which is there. I did mention to you, right, a little while ago, that a 1 BHK, which was there at 40 lakhs, is now trading in the resale market at 66 lakhs, which means the primary market is trailing it just a little behind. So that's a 50% rise. Actually, a 65% A little more than that. 65% growth. So we often talk about wealth creation. This is wealth creation. Absolutely, absolutely. Today we have a very loyal set of buyers who are there with us, who back us up on project after project. You know, while Bhavesh Bhai doesn't look so old, there are a lot of our, We started too young. That is a much better way of putting it. there are a lot of these guys who stay with us. When they came, they had just been married, aspirational, first generational buyers in that sense. शादी हुई है अभी, वो आके आज बोलते हैं कि यार भावेश भाई भद्रेश भाई की वजह से मेरे को घर मिला, मेरे बच्चे ऐसे कम्युनिटी में रह रहे हैं. एक और चीज़ है अभिषेक, आई डोंट नो आपने नोटिस किया नहीं किया, या आपकी टीम ने नहीं बताया आपको, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो वी डिडंट प्लान फॉर इट, इनएडवर्टेंट था, लेकिन वो हैप्पीनेस के अराउंड सेंटर्ड है. तो जब हम बोलते हैं आनंदम, मंगलम, उत्सव सिटी, सौभाग्यम, these are the names of our projects. और जो हमने ये प्राइस की बात कर रहे हैं, which is a very logical thing, तो इमोशनल परचेजेस जो हुए हैं वो आज ट्रांजैक्शनल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइंग हो गए हैं लोगों के लिए, कि मैं 40 लाख में आया था, आज जो मेरे बराबर में बंदा आ रहा है वो 66 लाख पे कर रहा है. ह्यूमन साइकोलॉजी एट प्ले. एंड ओवरऑल जो मार्केट का ग्रोथ हुआ है, वी बीन एबल टू बी अ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट. नाउ टू थिंग्स हैव प्लेड आउट. One is that the market is seeing a certain amount of premiumization happening, right? There is still a lot of value extraction pending, but that is in the new areas of growth and the new peripheries which are emerging within. So now Navi Mumbai has come to a stage where it has matured to a certain degree. So that arbitrage on price is gone. The value arbitrage is now getting unlocked. So I think that should. So one, I have so many questions to ask. आप जब answer तो I could think of 5 questions. So we'll have to keep the answer short, right? So we'll have to keep it कि बाबा, क्योंकि नहीं तो इतने सारे कोई मैं कवर कैसे करूँगा? जैसे आपने कहा, नहीं तो 1 second. आप तो North Navi Mumbai, which is Airoli, probably you're in Thane also, and all the way up to Panvel you're building, right? So that's why I'm going to discuss that with you. Second, I want to discuss townships with you. Has India changed? क्योंकि आप और बड़े भैया used to make what? 7-story buildings? 8-story buildings? That was, and now you're making 40-story buildings, 30-story buildings. So I want to talk about that as well. So let's discuss these things because this impacts my home buyer. They need to know what's going on. So let's begin with the, क्या 1 bedroom बिकना बंद हो गए हैं क्योंकि आपने बनाना बंद कर दिया कि वाकई में डिमांड नहीं है? कि डिमांड है,
क्या है? टेल मी मोर अबाउट वन बेडरूम्स. So what's happening is markets are evolving, Abhishek. So जो 1 BHK का पहले मार्केट था, वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हैज टेकन इट्स रूट्स एंड द मार्केट इज मूविंग अप. बायर बहुत एस्पिरेशनल है बिकॉज नवी मुंबई इज गिविंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायर्स टू एक्सरसाइज देयर एस्पिरेशंस. दैट्स वन पार्ट. अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई है लोगों के लिए क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इतनी बन गई हैं, जॉब्स इतने आ गए हैं. एंड कनेक्टिविटी की जो बात करते हैं हम, आज से मुझे याद है 15 साल पहले किसी ने बोला था नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाला है और एक पूरी टाउनशिप बिक गई थी, राइट? आज वो चीज़ प्ले आउट कर रही है. तो इम्पैक्ट तभी आता है या तो स्टोरी जब शुरू होती है या स्टोरी जब आंखों के सामने आ जाती है. तो हम लोग वहाँ पे मिक्स ही ऐसे बने. एंड वी ऑल्सो लर्न अलॉन्ग द वे कि यू कांट हैव एनी स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स व्हेन यू अप्रोच द मार्केट. वो वाला टाइम नहीं बचा है कि आप जो बनाओगे वो खरीदने ही वाला है. यू हैव टू एड्रेस योर ऑडियंस. तो पनवेल में जहाँ हमारे जैसे कारपेट्स भी आ रहे हैं, वी डूइंग एट 400, बट जो अपर 400 का 1 BHK कारपेट का, नाउ व्हेन वी कम टू अपर खारगर, वी चेंज द मिक्स टू 1 BHK एट 440 जब हम प्लानिंग कर रहे हैं. और अपना जो 2 BHKs हैं, they've also expanded a little more. So that's how we are addressing the individual requirements of the markets. I'll give you another case in point. Juinagar Nerul belt expanding very fast. Some of the more renowned Bombay developers are there. Average size वहाँ पे 700 का है. 700 से 725, 730 का कारपेट वहाँ पे 2 BHK का चल रहा है. We realized कि एक latent demand है जिसको कोई cater नहीं कर रहा है, which wants aspirational 850 का कारपेट. We are the ones doing that, and we're getting phenomenal response on that. नहीं बट नहीं, वन सेकेंड. सो आप थाना से लेके पनवेल तक हो, आप इंडिपेंडेंट घर भी बनाते हो, मतलब बिल्डिंग टाउनशिप भी बनाते हो, फ्रॉम अ 5 acre टू अ 50 acre, मे बी इवन बिगर. फिर आप ये क्या बोलते हैं, 1 bedroom बनाते हो, 2 भी बनाते हो, 3 भी बनाते हो. मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि आप कोई डुप्लेक्स घर भी बना रहे हो. Are you the only one doing this? Are you an alien developer in नवी मुंबई और सभी ये कर रहे हैं? Doesn't sound सब ये कर रहे हैं. तो ये what is this alien पना? एलियन डेवलपर तो नहीं, बट अभिषेक एक बात कहना चाहूँगा. आई एम एक बिग फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ और मैं काफ़ी चीज़ें फॉलो करता हूँ. जावेद अख्तर साहब ने एक बार एक बात बोली थी, शाहरुख और सलमान का डिफरेंस बता रहे थे. तो बोला था शाहरुख खान जो है वो क्लासेस के लिए मूवी बनाता है और सलमान खान मासेस के लिए मूवी बनाता है. तो टुडे ग्रुप कहीं ना कहीं इन दोनों का संगम है. हमारे पास शायद अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बात करूं तो 70% पोर्टफोलियो हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट का है. उसका रीज़न ये है कि मुझे आज भी दिल से लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर नवी मुंबई में कोई घर बिकते हैं या सबसे ज़्यादा अगर कोई डिमांड है तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट की है. ऑफ कोर्स अफोर्डेबल की सेगमेंट की डेफिनेशन शायद उदयपुर में अलग होगी, अहमदाबाद में अलग होगी, बॉम्बे में अलग होगी, नवी मुंबई में अलग होगी. मैं जब अफोर्डेबल की बात करता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है एनीवे फ्रॉम 35 लाख टू 90 लाख 1 करोड़ इज अफोर्डेबल, क्योंकि आज अपन मुंबई के रीजन में है. और जब मैं लग्जरी या बड़े सेगमेंट की बात करूं तो जैसा कि आपने बोला, हम ऐसा भी एक टावर बना रहे हैं जो पूरा डुप्लेक्स का टावर है. तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो हमारे पास सबसे सस्ता अपार्टमेंट 35 लाख का है जो पनवेल में है, और हमारा डुप्लेक्स जो है वो 9 करोड़ में है. और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम हर तरह के क्लाइंट के लिए, बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम रियल एस्टेट के सुपरमार्केट है. वी आर वॉलमार्ट ऑफ रियल एस्टेट. आप आ जाइए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे वॉलमार्ट में आपको नहीं मिलेगा. But that's outstanding, right? How are you able to train your team to deal with a 35 lakh customer? And मैं तो 9 तो पहुंच ही नहीं रहा हूँ. Forget 9 करोड़. From a 35 lakh to 3.5 crore. Is it that easy to train your team, hire the right people to tackle both of these guys? Their expectations, aspirations, wallet size, everything is way different. Outstanding. आई वुड से आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ कंपनी टुडे ग्रुप को एक बहुत बड़ा एज है, बिकॉज वी आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन अ प्रोसेस ड्रिवन कंपनी. यू विल हियर ऑल द टाइम एवरीबडी विल से कि रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बट उस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी हमने कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज बनाया है. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज हमारे पास 150 लोग या 160 लोग ऑन बोर्ड है जो सिर्फ सेल्स या सेल से रिलेटेड काम करते हैं. हमारी एचआर प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन है कि जब हम किसी बंदे को हायर करते हैं
तो स्पेसिफिकली उसका हिस्ट्री, उसका स्किल सेट देख के हम उसे रोल असाइन करते हैं कि क्या वो 1 करोड़ का फ्लैट बेचेगा या 10 करोड़ का फ्लैट बेचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके कंफर्ट जोन में रह के काम करेगा तो उसके हिसाब से सेल आएगा। शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज हम लोग साल के 1000 फ्लैट बेचते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का सोर्सिंग टीम है, क्लोजिंग टीम है, डिजिटल है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजी है, anything you can think of which big developers like Lodha or Godrej basically have. I think कहीं ना कहीं हम इस एरिया के उस स्केल के डेवलपर हैं। Oh wow, that's amazing. So then we should look out for that 5-6 साल बाद तो IPO आने ही वाला है. So look out for that. कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा. नहीं, but एक सेकंड, coming back to, we kept promising that we'll discuss Navi Mumbai. तो आपने पर मुझे उसका जवाब नहीं दिया. आपने बहुत superb जवाब दिया. But what's this thing about you're covering the entire gamut from north? North में नहीं, अब थाना में भी हो तो north में भी ऊपर चले गए. तो थाना से लेके आइरोली से लेके जूही नगर, खारगर, Panvel, and then probably even down as Raigarh continues. Is that spreading yourself too thin, or is it going back to your theory of कि मैं हर किस्म के buyer को cater करूँगा, हर किस्म के buyer not only for homes but also for offices? Tell me a little bit more about your geographic presence. Why such a large presence? अभिषेक, उसके बारे में मैं कहीं न कहीं बहुत पुरानी एक थ्योरी की बात करूँगा कि जो मनुष्य है वो बेसिकली क्या चाहता है, वो प्रगति चाहता है। तो कहीं न कहीं उस प्रगति की थ्योरी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग जब 2008 में जब हमने काम चालू किया तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो नवी मुंबई के एक पर्टिकुलर नोड कामोठे तक सीमित था। लोग कहते थे कि टुडे ग्रुप कामोठे का डेवलपर है। फिर हम धीरे धीरे उल्वे के डेवलपर बने तो लोगों ने कहा कामोठे और उल्वे का डेवलपर है। फिर हम लोग अपर खारगर में गए जहाँ हम लोग टाउनशिप बना लगे। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक ह्यूमन बीइंग, जैसे आज आपने बोला कि क्यों लोग 1 BHK से 2 में जा रहे हैं, 2 में 3 जा रहे हैं, उसका भी कोई कारण है। हर मनुष्य अपने आप को प्रगतिशील होता देखना चाहता है। एज ए डेवलपर हमारा भी वही थ्योरी है, पर उस थ्योरी के साथ हमारे एक थ्योरी एक और है कि अगर आप पूछोगे कि क्या आपको बोरीवली में काम करना है, नहीं, क्योंकि मैं और मेरे बड़े भाई साहब एक थ्योरी में बिलीव करते हैं कि हम उसी एरिया में काम करते हैं जो 45 मिनट में हम अपनी साइट पे किसी इमरजेंसी में पहुंच पाए। तो आज अपर खारगर भी हमारे यहाँ से 45 मिनट है, थाने भी हमारे यहाँ से 45 मिनट है, और वही हमारा रेंज है। और इस रेंज में ऑफ कोर्स दूसरा बहुत बड़ा कारण है टू गिव अ पोर्टफोलियो विच हैज एवरीथिंग अवेलेबल टू आवर क्लाइंट। हम लोग एक नीश मार्केट में काम नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू बी समबडी लाइक नाइकी, तो उन्हीं लोगों को जूते प्रदान करे जो 12,000 का जूता खरीद सकता है। हम लोग उन लोगों के लिए भी जूते बनाते हैं जो 600 रुपए का जूता खरीदता है, और उन लोगों के लिए भी जूते बनाते हैं जो जॉर्डन का 1 लाख रुपए का जूता खरीदता है। कुछ नंबर शेयर किया था and I couldn't pause you at that time, but I want to pause you now and ask you कि नवी मुंबई में जितने घर बिकते हैं उसमें आपका शेयर कितना है? क्योंकि एक कोई माइक्रो मार्केट में तो शेयर हो सकता है, इंतन एक लाइन हो सकता है, बट इन एन एंटायर सिटी which is so large, what is your number in terms of market share? I think that's a very confidential thing, but as you're asking, I would not try to dodge that bullet. I will give you the answer. हम लोग साल के लगभग, आप पिछले 2-3 साल की बात करें तो 1000 से 1200 फ्लैट बेचते हैं, और अगर आप नवी मुंबई की बात करें तो नवी मुंबई कुछ 18 से 20,000 यूनिट हर साल बेचता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन समवेयर अराउंड 7 to 9% है, जो कि इज गोइंग टू गो अप बाय अ बिग मार्जिन इन दिस कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज हमारे 12 नए लॉन्चेस इस साल हो रहे हैं। तो आई अज्यूम दैट इस साल और आते वाले साल में आई थिंक बाय 2028 वी शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट मिनिमम 12% नंबर। There you go. That's a huge number. So first of all, my best wishes. And on that same point that KP you dodged, or maybe you didn't want to dodge, tell me about these launches. Tell me, चलो 12 तो बहुत ज़्यादा हो गया सर, इतना टाइम नहीं है. But tell me your favorite 2, and which cannot be your favorite 2, or favorite 1 which cannot be your favorite 1. So tell me one each maybe. Now he will answer that. Like, no, he is working so hard in launches, he'll completely answer that question. So what are you super excited or super nervous, or give me something. Tell me. In equal proportions, Abhishek. A lot of excitement, lot of nervousness too, because we are wading into territories we've not been before. But what excites me the most is this duplicate R in Joynagar, which is 9 करोड़ वाला. 9 crore वाला. मैं 9 crore बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं, वो तो आपको ले जाएंगे वो नगीने. But ठीक है, but sorry, I don't want to interrupt.
Yes, yes. You're super nervous, super excited about that dude. Super excited about this because we're doing it for the first time. Nobody in Navi Mumbai. And Navi Mumbai has a lot of pedigreed players in this market. They haven't tried any adventure like this. But I'm also super confident because I know my audience. I know that there are these people who have this aspiration to live in a duplet tower where they're surrounded by the kind of people whom they interact with on a day-to-day basis. जो उनके peer group में है, वो रहना चाहते हैं. एक चीज भावेश भाई ने जो शायद हम लोगों का काफी डिस्कशन होता है नहीं सेट की मैं बात करूंगा आज was about the communities we are developing, right? Like-minded people coming together. एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम मिड सेगमेंट की बात करते हैं we've been able to establish communities. वही काम अब हम कर रहे हैं in the premium segment as per Navi Mumbai. So when we talk about these duplets, yes, incredibly excited about them. Yeah. Anything which is a township, a large project that is coming up, is it 30 acres, is it 50 acres? So we have a 30-acre township, which we are soon going to unveil in Kharghar, on the fringes of Kharghar. Again, a reflection of the growth that Kharghar as a micro market has seen and its outward expansion. But that township is going to change, the way Navi Mumbai perceives its townships. State-of-the-art planning, state-of-the-art alliances, associations, and something which has been designed keeping the end user in mind. एक चीज हम जो हर बार बात करते हैं when we are planning and particularly when we are sitting with भद्रेश भाई, यार यहाँ पे रहने कौन आएगा, राइट? मैं बात कर सकता हूँ कि मैं बहुत फैंसी ये बना दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अगर उसके मेंटेनेंस बिल में एक 25% का इम्पैक्ट उस पर आएगा तो मुझे बनाने की क्या जरूरत है वो? बट हो गए. But you're not discussing about investors, right? When you say loyal customers, these are not people who keep buying your apartment and then selling it towards the end. These are people who are giving you references. These are people who have probably taken 20 years back in your G+7 project, which could be a one bed, and now in your G+20, and who you're hoping they'll buy the third time from you in a G+40. That will be a great Nirvana stage to have. Nahi? But you've lived with him through his Pragati, as you called it, right? But fantastic. So KP, you spoke about these loyal customers, right? And I want to make this question a little uncomfortable for you. तो ये लॉयल कस्टमर्स यूजुअली जब बोलते हैं डेवलपर्स, जब वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आते हैं आपके पास शुरू में और जब आप प्रोजेक्ट बना देते हो वो निकल जाते हैं, देन दे गो टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. Is that what you meant or actually you meant something else? Tell me a little more about that. Absolutely not, Abhishek. See, like we often say, Navi Mumbai is a completely new story. तो यहाँ पे वो paradigm shift हो गया, the way investors were defined and the way you defined loyalty earlier. ये लॉयल्टी अब जो है ये एंड यूजर्स की है. जो बंदा हमारे पास शायद आज से 5, 6, 7 साल पहले एज अ डबल इनकम सिंगल किड डबल और डिंक जैसे बोला जाता है, दे केम टू अस, नाउ दे हैव गॉट द फैमिली एस्टैब्लिश्ड, दे आर अपग्रेडिंग फ्रॉम अ 1 to 2. देयर आर पीपल हु आर अपग्रेडिंग फ्रॉम आवर अर्लियर 2s to a 3 BHK. सो ये कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन साइकिल है. वी आर वेरी लकी that we are part of this cycle where Navi Mumbai is evolving, growth is coming, and people's ability to spend on house is expanding. So जो आप पहले बोल रहे थे 1 BHK बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, this is also a reflection of that growth that Navi Mumbai is seeing. But Bhavish bhai, he's got a lot of interactions with investors. We can also, help us understand on the. अभी ये कौन है ये लोग? देखो, आई थिंक नवी मुंबई में मैं बोलूँगा कि जो मार्केट आज चल रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टर्स प्लस रियल यूजर्स. रियल यूजर्स जो कीर्तन ने कहा, कुछ देर पहले मैंने विकास की बात की, तो विकास सिर्फ टुडे ग्लोबल का टुडे ग्रुप का नहीं हुआ है, विकास साथ में हमारे कस्टमर्स का भी हुआ है. जब 20 साल पहले अगर मैंने किसी को अपार्टमेंट बेचा, तो अब उसकी अगर उम्र 22 थी और 50,000 रुपये सैलरी था, तो शायद उसने मेरे साथ एक बार 1 बेडरूम लिया था. पर 20 साल के बाद वो भी 4 लाख 5 लाख की सैलरी में आ गया है, वो भी एक 4 बेडरूम लेना चाहता है, वो भी एक बड़े एमिनिटी में आना चाहता है. तो हमें बहुत ये कहते हुए खुशी है कि हमारे पास रिपीट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और रेफरेंस बहुत ज़्यादा है. ओवरऑल शायद अगर मैं टुडे फैमिली की बात करूँ तो 3000 फैमिली हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे रिपीट क्लाइंट हैं. हमने 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं. बट एट द सेम टाइम हमारे पास इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है. इन्वेस्टर का सेगमेंट शायद 2006-2008 के दिनों से चलता आ रहा है. पहले ये कस्टमर वो थे जो हम प्रोजेक्ट के अंदर शॉपिंग जिसको बोलते हैं या शॉप्स भी जिसको बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते थे. अब धीरे धीरे यही कस्टमर हमारे साथ हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट में
इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास लिक्विडिटी है। आज हर कस्टमर ऐसा नहीं है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स शेयर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नॉलेज मांगता है, रैंडम आप पिक नहीं कर सकते, कई लोगों के लिए स्पेक्युलेटिव है। रियल एस्टेट में कई लोगों को सेफ्टी ज़्यादा लगती है। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि यार ये 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया मेरे पास है, जो मुझे आने वाले 7-8 साल तक, जब तक मेरी बच्ची का एजुकेशन कॉलेज में नहीं जाएगा तब तक मुझे ज़रूरत नहीं है, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट, एंड वी हैव अ लार्ज कस्टमर बेस हु आर लाइक दीज। बट यू डिडंट मेंशन एनआरआई एनीवेयर। ये भी आपके बड़े फैन होंगे, उनकी तो एक टांग तो इंडिया में रहती ही रहती है, दे लव इंडिया। तो डू यू कैटर टू देम आल्सो? डेफिनेटली यस। एनआरआईज में अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमसे जुड़ा हुआ है। समहाउ एक चीज या ट्रेंड मैंने नोटिस किया है कि गल्फ कंट्रीज के लोग खारगर और उसके सराउंडिंग एरिया से बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें स्पेसिफिकली खारगर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें गल्फ कंट्रीज के कस्टमर्स का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा ऐसे क्लाइंट हैं जिनके बच्चे बाहर यूएस में, यूके में पढ़ते हैं, हर साल उनके पास 20, 25, 30 लाख का सेविंग होता है, दे वांट टू इन्वेस्ट, एंड वो भी हमारे क्लाइंट हैं। But that's amazing. नहीं, but ये तो this is news for me. You learn something new every day. Yeah. Gulf countries special affinity with Khargar. This is news. Interesting. भावेश भाई, आपने अपने लॉयल कस्टमर्स की बात की, KP also said the same thing. You आपने इन्वेस्टर्स की बात की, हमने वेल्थ क्रिएशन की बात की। मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक देता हूँ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा प्राइड है। हमारे ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था कि द टोटल हाउस होल्ड वेल्थ अमंग इंडियंस इज अप्रॉक्सीमेटली 11 ट्रिलियन US डॉलर्स। उसमें कुछ अनअकाउंटेड भी होता है हमारे हिंदुस्तानियों के पास, उसको हटा देते हैं, मतलब ज़्यादा ही होगा, उन्होंने कम ही बोला है। Nearly 50% of that is real estate. Since you spoke about stock market and share market, वो तो 10% भी नहीं है। तो we are in the right industry. 50% of Indian wealth अगर real estate में है, and developers like you, can you tell me, आप जब वो G+7 बिल्डिंग बनाते थे तभी नवी मुंबई में, I picked any location where of your choice, तब क्या रेट था और आज क्या रेट है? I want to get that wealth thing sorted. That's one of my favorite topic you just talked about. मैं आपको खाली 2 लोकेशन का एग्जांपल दूंगा और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमेशा ग्रोइंग मार्केट होता है उसके साथ जुड़ने से किस लेवल तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। 2012 की बात बताता हूँ, हमने उल्वे में एक साथ 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। उस समय उस लॉन्च में उसका प्राइस कारपेट पे 3,000 रुपया स्क्वायर फीट था। कट टू 2025-2026, उल्वे के सारे अच्छे प्रोजेक्ट 15,000 रुपया स्क्वायर फीट कारपेट या उससे ऊपर चल रहे हैं। 5 टाइम। यू टेल मी हाउ मेनी स्टॉक्स इन इंडिया आर कॉन्फिडेंट, जो कस्टमर के हाँ मुझे ये स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से समझ, आई एम नॉट सेइंग ऐसे स्टॉक भी है जो इससे भी ज्यादा कमाते हैं, बट स्टॉक मार्केट इज अ डिफिकल्ट गेम। लाइक जो लोग बहुत एनालिसिस और रिसर्च करते हैं, दे आर द वन मेकिंग मनी। बट रियल एस्टेट में से भर भर के एग्जांपल आपको नवी मुंबई में, कामोठे फॉर एग्जांपल, कामोठे के अंदर 2010 में आप शायद मानेंगे भी नहीं, पर 2,000 रुपया से 2,500 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट के ऊपर वहां पर अवेलेबिलिटी थी। आज किसी भी प्रोजेक्ट में 12 से 13,000 रुपया मिनिमम से मिनिमम रेट है। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ नवी मुंबई हैज सीन, और उसका एक ही कारण है अफोर्डेबिलिटी। जैसे जैसे लोगों का पास अपॉर्चुनिटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, क्वालिटी बढ़ी, लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया कि ये चीज अंडर वैल्यू है। जिससे हम हमेशा कहते हैं कि यार ये शेयर के अंदर आप पी रेशो देखो, आपको लगेगा कि ये शेयर अंडर वैल्यू है, ऊपर जाएगा। सेम थिंग रियल एस्टेट में भी काम करती है, जिसमें अंडर वैल्यू का कंसेप्ट है। जब आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया का प्रोजेक्ट किसी ब्रांड की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से और अफोर्डेबिलिटी की वजह से अंडर वैल्यू है, वो 2 साल 5 साल के अंदर ऊपर जाएगा ही जाएगा। यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छे इन्वेस्टर की जगह पैसा लगाएं। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे मैं कोई भी फोरम पे जाऊँ, चाहे वो मीडिया हो या कहीं स्कूल में जाके यूनिवर्सिटी में बोलना हो, base effect, and I'll start with a story first. I recently met Mr. Satish Magar,
I had bought an apartment in Magarpata city in 2005 शायद, 1000 रुपया स्क्वायर फुट, एंड इन 2-3 साल पहले बेचा at 10-11,000, सिमिलर टू द स्टोरी यू शेयर्ड. What a growth. मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, सर 10x in 20 years. Next 20 years, sir, 10,000 will become 1 lakh. He said no. So my question to you is, we have seen a phenomenal wealth creation of 5x, 6x, 2,000 का 12,000. But that's also a base effect. Tell me a little bit more about that. So is which means the Vashis and the Khargars and the Panvels are now reaching the 10,000 number, 50,000 number, and therefore I have to look at Karjat and beyond. Tell me a little bit about that. Where do you see the wealth creation now then? आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बेस इफेक्ट की वजह से नवी मुंबई के प्राइसेस को क्या फर्क पड़ता है. तो मैं उसका एग्जांपल आपको यूएस के मार्केट से कंपेयर करके बताता हूँ. आई थिंक एवरीबडी नोज द ब्रांड एप्पल, और एप्पल की कहानी भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि इट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 80s, बट रियल जो टर्न अराउंड आया वो 2006 के अराउंड आया, जब आईफोन मार्केट में आया. उससे पहले भी उनके काफ़ी प्रोडक्ट थे. आप 2006 से 2026 में अगर आप उनका शेयर देखेंगे या स्टॉक देखेंगे, इट हैज़ गॉन अप मल्टीपल टाइम. क्या आप कह सकते हैं कि 2046 में उतने ही मल्टीपल से आगे बढ़ेगा? नहीं. सेम चीज मैं आपको बताता हूँ साउथ बॉम्बे के लिए. साउथ बॉम्बे में लोग कहते हैं कि नेपेंसी रोड के अंदर वाल्केश्वर में 1 लाख रुपए का रेट है, जो कभी 10,000 का हुआ करता था. क्या वो 10 लाख का होगा? नहीं. इसका मतलब आज भी पोटेंशियल है कि जहां पर 10,000 का, देखो 2,000 का या 1,000 का रेट 10,000 गया है, पर 10,000 का 1 लाख नहीं होगा. ये 10,000 का रेट 12, 15, 18, 20 होता ही रहेगा जब तक वो राइटली प्राइस नहीं हो जाता. तो हर जगह का एक राइट प्राइस है. जैसे मैं आज भी आपको कह सकता हूँ, ऐसे कई एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, आप उल्वे के पास में सिडको का एक नोड है, पुष्पक नोड. पुष्पक नोड में आज भी आपको 8, 9, 10,000 कारपेट के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है. दैट इज अंडर वैल्यू, क्योंकि वो सिडको ड्रिवन है. वो बहुत जल्दी 12, 14, 15,000 हो जाएगा, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. ऐसे ही खारगर के पास में एक्सटेंडेड खारगर का एरिया है, जिसे अपर खारगर कहते हैं. उस एरिया में आज भी आपको 1 बेडरूम 60 लाख और 2 बेडरूम 90 लाख का मिलता है, जबकि खारगर में वही 2 बेडरूम 1 करोड़ 50 लाख का मिलता है. तो दैट इज अनदर अंडर वैल्यूड जेम, जो 90 लाख का 120, 140, 150 हो जाएगा. तो ऑफकोर्स देखो, अच्छी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है. अगर सारी चीज़ें रास्ते पे डायमंड पड़े होते तो शायद अभी तक आपने और मैंने उठा लिए होते. तो कहीं ना कहीं हमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मेहनत करनी पड़ेगी. पर नवी मुंबई में आज भी ऐसे कई हिडन डायमंड्स है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है. भावेश, मैं ऐसे वेट कर रहा था आपके सेंटेंस खत्म होने का. दैट हिडन डायमंड इज यू. 1 second. I'm not trying to butter you. But KP, seriously, isn't he the star salesperson of your entire organization? The way he has sold Navi Mumbai to me, जबकि बहुत डेटा है हमारे पास, हमने नवी मुंबई की रिपोर्ट भी लिखी थी, which is done very well. But this man has sold Navi Mumbai so beautifully to me कि मुझे लग रहा है मैं भी यहाँ पे कुछ खरीद दूँ. I'm not buttering you at all. Does he not come? Do you train your salespeople yourself? I spend a lot of time with them because one of my yes I do. But मैं आपको इतने आसानी से जाने दूंगा नहीं. We spoke about a lot of good stuff. I asked you difficult questions. You answered them with full marks. But now it comes to the rapid fire round. उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है. It has to be rapid. मतलब questions भी rapid, answers भी rapid. नहीं तो फिर उसको हम लोग माइनस वो क्या बीप कर देते. Is there hamper or no hamper? नहीं है बॉस. आज के बाद तो हैम्पर के बात ही नहीं करूंगा. Because if it's hamper, I'm going to call it today group. No, I'm serious. Because look at this, yaar. Come on. 35 lakhs to 9 crores. That's truly outstanding. तो ये मेरा promise रहा कि I'm going to do an all India research and I'm going to figure out if there's a developer who does this similar to what you do. And if not, then I'll bring a hamper myself. So ready then? Yes. Navi Mumbai in one word. Growth. Oh, I like that. I love that answer. आपने तो छा दिया, but मुझे लगा आप ये भी बोलोगे सिंस यू बॉलीवुड फैन कि अभी मूवी बाकी है. अभी बाकी है. Kharghar, emerging or maturing? It's kind of mix. Yeah. Yep. Nice. Okay, I'll give you that. One capital discipline rule that you'll never compromise as a developer.
I have a finance background, and one thing I keep making sure about my company has a debt equity ratio. Never ever compromise on that. बॉस, आपको घर खरीदना है तो भी इनसे खरीदो, स्टॉक खरीदो भी इनसे खरीदो, ये और मूवी देखनी तो भी इनसे डिस्कस करो. बॉस, there's a lot of things to discuss with you. Yes, I'm going to come back again. Yeah. Biggest risk developers underestimate. I think cash flow management, a lot of people don't give a lot of emphasis, but that's where make or break of the company. And the project. Yes. Love that answer. 5-year outlook, acceleration or stabilization for Navi Mumbai. 20-year acceleration, not 5 years. ये तो पता ही था. ये तो पता ही था. That was a giveaway answer. Yes. चलो, superb. Well done. You ready? I have to compete with my boss. That's why I looked like that. I said, what's private? That's why I looked like that. I said, are you ready? चलो, ठीक है. But I promise I'll give you easier ones. Oblast. Today's Navi Mumbai buyer in one word. चलो मैं आपको 2 word दे देता हूँ. What is that? Intelligently aspirational. So they're young, they're intelligent, they know what they want affordability and aspirational. And you give them all. All of it and more. Superb. Next question. Investor or end user, who's in majority? End user, through and through. By far, By far end users. And that's why it's a very strong, stable market. Investors come where end buyers are. Otherwise, you produce ghost towns. We don't do that. that's a beautiful answer. And we saw that in China. That's a beautiful answer. I love that answer. One buyer expectation that you think never existed 5 years back. Community development. Hugely underestimated. Today we see people coming together and wanting to stay in a particular kind of community. And we've been able to provide that. And we're reaping dividends out of it. And we'll continue to do that because we know that human beings are social animals. And we're just catering to the very basic need. Has given us great dividends so far. Nice. We spoke about that at length. You're giving such large projects, so fantastic. Are decisions of home buyers faster or slower today compared to 2021? They're very deliberate now. हर चीज़ सोची जा रही है. पहले शायद एक टेलविंड थी जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी इमोशनल होती थी, थोड़ी नॉन नंबर बेस्ड होती थी. आज बहुत क्लियरली सब चीज़ें वे करी जा रही हैं एंड द डिसीजन मेकिंग साइकिल हैज बिकम अ लिटिल लॉन्गर. सो इम्पल्सिव बाइंग कम हो गई है, लेकिन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए बायर्स आर कमिंग. अरे पर ऐसा सेल्स बंदा होगा जो इतना सच बोलता है, ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, ये भी बोलता है. सो ही इज एजुकेटिंग द बायर हिमसेल्फ, right? And that's what helps you sell so much, because that honesty, delivery on time, affordability, aspirational, if you cover all that tick, 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 you're a rock star. But so we stay with you. We'll stay with you. One realistic trend India is underestimating. The overall expansion of the markets, which are undervalued at the moment, is really not being looked at too seriously. Markets are expanding fast, the peripheries are expanding fast, and there are a lot of stories hidden out there. That's really being underestimated at the moment. आपकी सुबह मीटिंग पीएमओ के साथ थी क्या? नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मोदी जी चाहते हैं कि हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं, तो it has to be outside these 7 cities. There has to be a Mumbai 3.0, there has to be an Ahmedabad 2.0, और I don't know what 3.0 और 4.0, क्योंकि नहीं तो फिर ये तो सैचुरेशन हो जाएगा. जैसे हमने अपनी मैंने कहा एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें we realized Navi Mumbai is the data center capital of India. Did you guys know that? मुझे भी नहीं पता था. अच्छा, आपको पता था? We have seen the trend for the last many years now that the way these data centers are coming left, right and center, and every month there's a news कि या तो कोई खरीद रहा है या किसी को खरीदार बड़ी जगह चाहिए. So that trend is very visible to us. Outstanding. I want to shake hands with both you and Bhavesh bhai, you. But guys, I have to say this. Location Nexus तो बहुत किए हैं, सब में बहुत मजा आता है, सब में बहुत हंसते हैं. But this one was special because I met an amazing sales guy. I met an alien, I have to say that. I met a guy who has, क्या बोले उसको, दिवाली हैम्पर बोले कि
एक आपने क्या वर्ड यूज किया था? You had civil masses and classes. He didn't like Amir Khan, but I still feel he makes something for the masses and classes. Maybe we'll say Ranveer Kapoor, Ranveer Singh. But ऐसे developers कम मिलते हैं. I have promised him that I will do some research and figure out if there's another Bhavesh Bhai in India, but outstanding. So till the time we meet next with another location and another set of guests, Navi Mumbai is rising. This is the only place in India, mark my words, which has had an international airport now and a JNPT seaport that's going to bring a lot of economic activity, right from blue collar to white to gold. So once again, Navi Mumbai is here and it's rising. So till next time, see you. Thank you.